Good afternoon. Welcome back, everybody. Welcome back, Madhur. Uh, God bless you, Vita. God bless you. Good afternoon. Good afternoon. Welcome back. Welcome back, everybody.
कौन सा? वो प्राइवेट पर्सन वाला? नहीं, 24 आवर नहीं है इसमें। मतलब वो 24 आवर वाला तो सिर्फ पुलिस वाला गिरफ्तार करे तब है। 6 ही घंटे हैं। अच्छा, जो पुलिस वाले देंगे, यस। बिकॉज ऐसे नहीं, ऐसा होता है, अगर आप मेरे पास लाए हो, अब मैं अब से इन्वेस्टिगेशन शुरू करूंगा, तो वो मेरे 6 आवर्स एक्स्ट्रा है, क्योंकि मैं कस्टडी में कब ले रहा हूँ, इसलिए लिखा है नाउ ही विल टेक इट इन टू कस्टडी, क्योंकि मेरे, सॉरी, हाँ तो वो तो सिर्फ लाने के लिए कर रहा है। अब 24 घंटे क्यों देते हैं? ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कर पाऊं। अगर आपने 6 घंटे माइनस कर दिए, मेरे पास कम टाइम है, इसलिए। और इसीलिए आप देखो, एंड नाउ ही विल बी टेकन इनटू कस्टडी, तो वो कारण था। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर बीएनएसएस टुडे। Yesterday we were on the arrest provisions. We saw firstly the power of a police officer to arrest without a warrant. We then saw the arrest in a non-cognizable case. After that, we came on to the safeguards which have been introduced by sections 41A, B, and C and D, which are now incorporated as separate sections. A notice should be given, especially if it's a offense punishable with 7 years or less than 7 years. And in case it was punishable with less than 3 years also, then another safeguard has been added. If the person happens to be infirm or a person below above 60 years, then in that case, arrest can be only after a specific order from the DSP has been given. We also saw that a magistrate is also empowered to arrest in case A, the offense is being committed in his presence, or B, a person who's an accused is in his jurisdiction and he knows that he has, for example, murder ka koi hai, he can arrest him. Also, we gave powers to a public person to arrest in case a non-bailable and a cognizable offense was being committed in his presence. Basically, we go with the basic presumption that state cannot be everywhere. और इसीलिए हम पूरे राइट्स दे रहे हैं पब्लिक को कि they should help us in bringing the accused to the book. And that's the reason why we are giving specific powers to a public person, though only in cases of non-bailable and cognizable offenses. However, that arrest, though the word arrest is there, it is not deemed to be a official custody. He will take him to the nearest police officer or to the nearest police station, and now he will be taken into custody. That is why it was specifically written that now he will be taken into custody, which means जो मेरे आर्टिकल 22 की कस्टडी है वो अब शुरू होती है. That is the reason why this line had come again, and now he shall be taken into custody. We also saw that how a person will be arrested by touching him, not if it happens to be a woman. And we can use force while arresting a person, even to the extent of causing death, but only in those cases where it is punishable with death or life. We were on the section in which we were dealing with search of a place to arrest the accused. Section 47 of CRPC corresponds to section 44, which we were discussing yesterday. Also, we saw yesterday that a new provision has been added regarding handcuffs. In almost all serious offenses, the police officer can handcuff him while arresting, and also while taking him to the court, he can be taken under in handcuffs. This is in stark contrast to many Supreme Court judgments, Sunil Batra and so many others, where
the Supreme Court has been very, very categorical that handcuffs shall not be used except in extremely rare cases. Now, that means we will have to take all these offenses which are enumerated here as extremely uh, important cases in which now legislature has allowed the use of handcuffs. Naturally, because I have a reasonable suspicion. वो शुरू में ही उन्होंने क्लियर कर दिया कि मुझे पता है या मुझे रीजनेबल सस्पिशन भी है तो भी कर सकता हूँ, और इवन अगर मैं गलत गिरफ्तार कर लेता हूँ तो मुझे जनरल एक्सेप्शन का बेनिफिट मिलता है। इन गुड फेथ था, बट आई एम जस्टिफाइड बाय लॉ। ओके, नाउ वी वर ऑन दिस एस्पेक्ट of search of a place. Now please remember, this search is for a person, this search is not for a thing. ये खास ख्याल रखना है, ये पहला सर्च का प्रोविजन आ रहा है, पर हम एक आदमी को अरेस्ट करने के लिए सर्च कर रहे हैं, चीज के लिए नहीं कर रहे, वो आगे आएगा। सो लेट्स गो टू सेक्शन 44 corresponding to section 47. If any person acting under a warrant of arrest, any person, so please remember, एक प्राइवेट आदमी भी हो सकता है जिसको अरेस्ट वारंट दिया गया, क्योंकि अरेस्ट वारंट किसी को भी दिया जा सकता है, or any police officer having authority to arrest. So that means here any police officer having authority to arrest अलग क्यों लिखा, क्योंकि वारंट ऑफ अरेस्ट इसके साथ नहीं जोड़ा गया। So any police officer in hot pursuit can always go into a place to arrest the accused. तो यहां पे जरूरी नहीं है कि उसके पास अरेस्ट वारंट हो, सॉरी सर्च वारंट हो, तो सर्च वारंट के बिना भी वो जा सकता है। Has reason to believe that the person to be arrested has entered into or is within any place. या तो हमारे सामने आ गया, अंदर गया है, और यहां हमें पता चला है कि यहां है। Any place residing in or being in charge of such place shall on demand of such person. अब जो भी उसका मालिक है उस घर का या जो भी रहता है, वो ऑन डिमांड हमें अलाउ करेगा फ्री इनग्रेस एंड ऑल रीजनेबल फैसिलिटीज। तो वो दरवाजा खोलेगा, और नॉट ओनली दरवाजा खोलेगा, हमें पूरी अंदर मदद करेगा कि इसको जहां गिरफ्तार करना है वो हमें कोई रोक टोक नहीं करेगा। सबसेक्शन 2, if ingress to such person cannot be obtained under subsection 1, it shall be lawful in any case for a person acting under a warrant in any case in which warrant may be issued but cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape, a police officer. So जहां पे अगर सपोज दरवाजा लॉक्ड है, कोई खोल नहीं रहा है, बेल मारे कुछ भी है, नहीं खोल रहा है, इन सच केसेस इट विल बी लॉफुल फॉर बोथ, जिसको एक पब्लिक का आदमी है जिसको कोर्ट ने वारंट दिया अरेस्ट का, वो भी तोड़ सकता है दरवाजा, और अगर पुलिस वाला है और वो ये कह दे कि जी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं वारंट लाऊं जाके, तो ये जो पब्लिक आदमी है उसके पास वारंट है, बट जो पुलिस का आदमी है ही डज नॉट हैव अ वारंट, नो प्रॉब्लम्स, ऑल ही हैज टू प्रूव इज कि मेरे पास टाइम नहीं है, अगर मैं वारंट लेने गया ये भाग जाएगा। ये चीजें हम कहाँ लिखते हैं, ये सारी चीजें मेरी केस डायरी में लिखते हैं और रोजनामचा में लिखते हैं, जो हमारी जनरल डायरी होती है उन दोनों चीजों में लिखते हैं। But cannot be obtained without affording the person to be arrested an opportunity of escape for a police officer to enter such person and break open any outer or inner door or window of any house or place, whether that of the person to be arrested or of any other person. चाहे इसका घर है या किसी और का घर है, हमें कोई फर्क, चाहे दुकान है चाहे कोई भी जगह है। सो प्लेस वर्ड यूज्ड है। सो जहां पे हमें इजी इनग्रेस नहीं मिल रहा, हम इवन बिना वारंट के तोड़ सकते हैं, अंदर के दरवाजे भी बाहर के दरवाजे भी, खिड़कियां भी, सब कुछ तोड़ देते हैं। If after notification of his authority and purpose and demand of admittance duly made, he cannot otherwise obtain admittance.
तो डिस्पाइट कि उसने बोल दिया हम पुलिस हैं, अरेस्ट करने हैं, वो नहीं खोल रहे दरवाजे, फाइन, हम दरवाजे तोड़ सकते हैं, खिड़कियां तोड़ सकते हैं, बाहर की भी अंदर की भी, प्रोवाइडेड। एंड ऑल्सो प्लीज रिमेंबर, इसमें एक बाहर का जो मतलब पब्लिक का आदमी है जिसको वारंट दिया गया है उसको भी ये पावर है। सो सपोज किसी के अरेस्ट वारंट दे दिया, एक वकील है, वो पुलिस नहीं पकड़ रही उसको, वो कहता है वकील साहब को, वकील साहब आपके गांव में रहता है ना ये आदमी, हाँ यही रहता है, आपने देखा, हाँ सर मैं देखता हूँ, सुबह देखा, उसको गिरफ्तार आप करो, और अरेस्ट वारंट मैं वकील को दे देता हूँ, आई एम एम्पावर्ड। अब वो जाता है और वो अंदर खोलता नहीं दरवाजा, तो वो वकील भी, अब वारंट ऑफ अरेस्ट है उसके पास, वो तोड़ सकता है दरवाजा। He has full rights to break open a door. So याद रखना, ब्रेकिंग ओपन का राइट जो वकील, जिसके पास अरेस्ट वारंट है, और पुलिस ऑफिसर बिना अरेस्ट वारंट के भी, वो अगर उसके पास टाइम नहीं है ताकि जब तक वो भाग जाएगा, he can break open the doors, windows, both outer as well as inner. Provided that if any such place is an apartment in the actual occupancy of a female, not being the person to be arrested, who according to custom does not appear in public, such person or public officer, police officer shall before entering such apartment give notice to such female that she is at liberty to withdraw and shall afford her every reasonable facility for withdrawing, and may then break open the apartment and enter it. Now, this is not only to be applied for women who are bound by customs. As a general rule, this is a general rule of every police state. Every state has given these orders that in case there happens to be a female inside, then you will first ask her to leave. You will ask her to leave, and then only you will break open. And even in case you enter a room, then also it happens. ये बहुत ही एक, because ये बहुत सारी troublesome चीजें हो जाती हैं. Because it's very easy to lay allegations against any police personnel. It's all, इसलिए हम तो यहाँ तक rules बनाते हैं. As an IG, I remember I made rules and sent them to all police stations कि आप जब भी जाओ तो आप अपना कैमरा ऑन रखो. उस टाइम वीडियो कैमरास होते थे, मैं वीडियो कैमरा लेके जाओ. और हम अपना, इनफैक्ट आई रिमेम्बर आई ऑर्डर्ड कि हर थाने में 2-3 वीडियो कैमरास लेके रखो, और जो भी जाती है वो गाड़ी में रखा करो ताकि इमीडिएट यूज हो जाए. तो आप उसकी वीडियोग्राफी करो, कल को आपके ऊपर एलिगेशंस ना हो. सो आपको वीडियोग्राफी भी करनी है, और सबसे पहले एंड बेटर हमेशा एक वुमन पुलिस ऑफिसर साथ लेके जाओ. तो जब ये ऐसे आप सेफ गार्ड्स रखते हो तो फिर शिकायतें नहीं होती. बट वो नॉर्मली क्या होता है, वो दारू पी के पहुंच जाते हैं ना, उन्होंने प्रॉपर वर्दी पहनी होती है, फिर 100 लफड़े शुरू होते हैं. So, so one thing, though it is written here that only women by customs have to be, यानी कि पर्दा नशी women have to be asked to leave. But as a general rule, the rule being followed in this country is every woman. So irrespective of the fact कि वो पर्दा नशी है या नहीं है, she has to be asked to leave. Now, subsection 3. Any police officer or other officer authorized, any person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in which, in order to liberate himself or any person who after having lawfully entered is detained therein. बहुत बार क्या होता है, वो अंदर चले गए, वो बाहर वेट कर रहा था, उसने बाहर से ताला मार दिया. This happened many times. In fact, it happened with the IPS probationer. I remember he was my probationer, और वो बेचारा नेचुरली बहुत जोश में था, तो जल्दी जल्दी तोड़ तोड़ के अंदर चला गया. वो वेट कर रहे थे बाहर, वो जैसे ही अंदर गए उन्होंने बाहर से सारे कुंडिया कुंडिया मार के ताले मार के भाग गए. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, आर अंदर जाने के लिए तो आपने तोड़ना अलाउ कर दिया, बाहर जाने के लिए तो लिखा नहीं आपने, कल को आप मेरे खिलाफ और केसेस दर्ज करो. सो नाउ लॉ हैज मेड इट क्लियर दैट इवन इफ यू आर, कोई रीजन हो गया आप अंदर ही बंद हो गए, तो बाहर निकलने के लिए भी तोड़ सकते हो. इनफैक्ट देयर वाज अनदर वेरी सैड इंसिडेंट. आई रिमेंबर there was a probationer, he lost his life. मेरा एक आईपीएस प्रोबेशनर, मेरा एक स्टूडेंट, एक मेरा चेला था. So when he joined, before he was working under me, he was an IPS probationer, and he went to, एक हमें नारकोटिक्स की इतला थी, वो बेचारा नीचे गया, और वो उन्होंने क्या किया था, गैस खुली छोड़ दी थी, एंड उसको स्मेल भी आई थी. एंड थानेदार भी था साथ, वो दोनों नीचे गए,
और जैसे ही वो नीचे गए, ऊपर से उन्होंने एक स्पार्क छोड़ा था किसी चीज से, और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया, वो पूरा ब्लास्ट हुआ था, दोनों मर गए थे बेचारे. सो दिस हैपेंस. सो दैट इज व्हाई बहुत ज्यादा कॉमन सेंस चाहिए, बिकॉज यू आर डीलिंग विद क्रिमिनल्स. दे नो क्या कर रहे हैं. उस टाइम पे आपके होशोवास अगर परफेक्ट नहीं होते हैं, तो मेनी टाइम्स यू मे लूज योर लाइफ. सो दैट इज व्हाई बहुत चैलेंजिंग होता है कई बार. खासकर जो नए आते हैं पुलिस में, या नए नए अभी, बिकॉज आई वॉज आईपीएस एट द एज ऑफ 21, 22 के एज में तो मैं एएसपी था. तो उस उम्र में आपकी इसकी वो मेच्योरिटी नहीं होती, एंड देन एंड दिस थिंग्स हैपन. अब उसको, अब गैस थी, स्मेल आ रही थी, ही शुड हैव इमीडिएटली चौकन्ना हो जाना चाहिए था, उसको बाहर आ जाना चाहिए था. वो इन्वेस्टिगेशन करने और नीचे चला गया. वो जैसे नीचे तहखाने में गया, उन्होंने ब्लास्ट कर दिया, खुद बाहर भाग गए थे. सो दिस थिंग्स हैपन, पर उन चीजों से बचने के लिए ये चीजें बनाई हुई हैं कि हमें लीगली हम अलाउड है, जाने के लिए भी तोड़ सकते हैं, बाहर निकलने के लिए भी तोड़ सकते हैं. Section 45, pursuit of offenders into other jurisdiction. A police officer may, for the purpose of arresting without warrant any person whom is authorized to arrest, pursue such person into any place in India. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है. फिल्मों में देखते हैं ना, वो पुलिस वाला उसका पीछा कर रहा है, आज जम्मू कश्मीर में है, कल वो राजस्थान में है, परसों गोवा में बैठा है. दैट इज लीगली अलाउड इन हॉट परसूट. आप कहें तो इसका मतलब है जुरिस्डिक्शन नहीं है मेरा. अगर मैं किसी की हॉट परसूट में हूं, मैं उसको कहीं भी गिरफ्तार कर सकता हूं. तो दैट मीन्स मैं दिल्ली का पुलिस ऑफिसर हूं, मैं मुंबई में जाके गिरफ्तार कर सकता हूं. मैं उसकी, अगर मैं हॉट परसूट में हूं, तो मैं उसको चेन्नई में गिरफ्तार कर सकता हूं, मैं कहीं भी कर सकता हूं. दैट मीन्स जुरिस्डिक्शन का एंगल नहीं आता. तो अगर मैं किसी की हॉट परसूट में होता हूं, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन. यू कांट से यू हैड नो जुरिस्डिक्शन टू अरेस्ट मी. आई हैव जुरिस्डिक्शन. एनकाउंटर क्या होता है? नहीं, गलत. Encounters are self defense mechanisms. एनकाउंटर होता है, एनकाउंटर तो वर्ड टीवी वालों का है, हमारा प्राइवेट डिफेंस होता है वर्ड. दे हैव फायर्ड एट मी एंड लॉ परमिट्स मी टू सेव माय लाइफ एंड द लाइफ ऑफ अदर्स. सो इन सेल्फ डिफेंस आई फायर्ड, एंड सिंस मेरी प्रैक्टिस है फायरिंग की, सो मैं उससे बेटर शॉट हूं. उसकी गोली बच गया, मैं, मेरी गोली लग गई, बैड लक उसके लिए. तो ये एनकाउंटर होता है. सो बेसिकली जब मैं उसको गिरफ्तार करने गया, तो मैंने अभी पढ़ा है कि मैं कोई भी फोर्स यूज कर सकता हूं. ये जरूरी नहीं है कि मैं अपने एरिया में फोर्स यूज कर सकता हूं, मैं कहीं भी कर सकता हूं. और इवन में अगर डेथ भी करनी पड़े, जो करनी नहीं चाहिए, बट अगर हो जाए तो हो सकती है. नथिंग रॉन्ग इन इट. So I can use force even to the extent of causing death outside my jurisdiction, provided I'm in hot pursuit. Okay. चलिए, I hope everybody is now clear on this section. We now go on to section 49, which corresponds to section 46. Now, the person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. ये सुनील बत्रा के केस से बना था, ये एक सेफगार्ड था, बट इसको खुद ही निगेट कर दिया इसी किताब ने. जब हम आते हैं 43 के सबसेक्शन 3 में, तो वो तो ऑलरेडी निगेशन है ही इसका. As a general rule, more than necessary force will not be used. अब यहाँ पे मुझे एक एज ए एडवोकेट मैं एक चीज को इसमें डाइसेक्ट करता हूँ. यहाँ फोर्स वर्ड यूज है कि रेस्ट्रेंट वर्ड यूज है? हथकड़ी के लिए बात कर रहे हैं, गोली की तो नहीं बात कर रहे. They have not used the word, not force will not be used जितना की जरूरत है, उससे हम ज्यादा यूज कर सकते हैं. The word is only restraint. यानी मैं बेड़ियां नहीं डालूंगा, हथकड़ियां नहीं डालूंगा. They should have used the word force. तब मीनिंग होता.
तब क्वालिफाई करता जब हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स यूज कितना करना है। अभी तक कहीं कुछ नहीं लिखा कि कितना। अभी तक आपने लिखा है कि आप अरेस्ट करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर किस हद तक ये कहीं नहीं लिखा। सो क्वेश्चन अराइजेस कि किस हद तक जो है वो ना तो हमें राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बताता है, ये अरेस्ट इज नॉट माय एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, तो मेरा तो उस लॉ में तो आ नहीं रहा। तो एक ही जगह आ रहा है जनरल एक्सेप्शंस में, नथिंग इज एन ऑफेंस डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, दिस लॉ इज जस्टिफाइंग मी, सीआरपीसी इज जस्टिफाइंग मी, मैं अपना अपनी जस्टिफिकेशन है, मैं कर रहा हूं, तो जनरल एक्सेप्शन में आ रहा हूं। तब आप मुझे ये तो बता नहीं रहे कि कितना फोर्स यूज करना है। अब ये भी कहीं नहीं लिखा, कहीं भी वर्ड नहीं आया रीजनेबल फोर्स विल बी यूज्ड, या यहाँ पे ही लिख देते जब यहाँ मौका आया था। ये बारीकियां होती हैं बनाते वक्त। हैड दे जस्ट यूज द वर्ड रीजनेबल फोर्स एंड रेस्ट्रेंट, खत्म कहानी, फंस गए थे। अब मैं निकल जाऊंगा कि बताओ कहाँ कहाँ लिखा है कि मैं गोली नहीं चला सकता। वो भाग रहा था, मर्डर का मुलजिम था, मैंने गोली चलाई, सॉरी उसकी पीठ पे लगी, मेरा निशाना बहुत अच्छा नहीं था, वो हिल गया था, मैं तो उसके पैर में ही मार रहा था, वो सडनली बैठ गया, मेरी क्या गलती है, आई एम जस्टिफाइड। सो दैट इज व्हाई ये लूप होल्स जो होते हैं हम वकील लोग यही तो पकड़ते हैं। सो इसीलिए द वर्ड रेस्ट्रेंट आई एम नॉट वेरी हैप्पी। मैंने तब भी देखा था कि इनको असली चीज तो पकड़ में ही नहीं आई इनके। सो द वर्ड शुड हैव बीन अननेसेसरी फोर्स एंड रेस्ट्रेंट यूज होना चाहिए था, पर इन्होंने सिर्फ रेस्ट्रेंट यूज किया है। यानी कि ज्यादा, अब हथकड़ियां तो अलाउ कर ही दी हैं आपने, अब इसका मतलब है बेड़ियां नहीं डालनी, मतलब तो यही हो गया। आप हथकड़ियां तो यूज कर ही रहे, हमने पढ़ लिया है, तो बचा क्या है, बेड़ियां बची है ना, जैसे वो अमेरिका वालों ने भेजा था वो 3-4 वाली, वो नहीं करनी, वो भी कर सकते हैं अगर हमें लगे अनरीजनेबल। सो बेसिकली यू मस्ट सी कि इसके अंदर पॉसिबिलिटी तोड़ने का कितना तरीका है। सो एक सेकंड में हम तोड़ रहे हैं इसको। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 47, सेक्शन 47 corresponds to my section 50, and it is a statutory reflection of my fundamental right under article 22. So this is a statutory recognition of my fundamental right which is given under section article 22. Every police officer or other person arresting any person without warrant shall forthwith communicate to him full particulars of the offense for which he is being arrested and other grounds of such arrest. So article 22, I have a fundamental right to be informed of the grounds of my arrest, वो यहाँ भी है. Subsection 2, where a police officer arrests without warrant any person other than a person accused of a non-bailable offense, he shall inform the person arrested that he is entitled to be released on bail and that he may arrange for sureties on this behalf. So जब मैं उसको bailable offense में गिरफ्तार करता हूं, I have to inform him, it's my legal duty, that this is a bailable offense and please find your sureties, मैं आपको अभी bail देने के लिए तैयार हूं. So please remember, bailable offenses में it becomes my legal duty to give him bail and to apprise him that this is a bailable offense and he can take bail right away, and these are the sureties which are needed. Section 48 corresponds to section 50A. 50A was added by the 2005 Amendment Act that has now become section 48. All these are safeguards. जब हम खत्म करेंगे मैं आप एक बार हम सारे लिखवा दूंगा आपको. All these, ये क्वेश्चन आता है, what are the safeguards against arrest? Another safeguard is coming up. Every police officer or other person making any arrest under this Sanhita shall forthwith give the information regarding such arrest and place where the arrested person is being held to any of his relatives, friends, or such other persons as may be disclosed or nominated by the arrested person for the purpose of giving such information, and also to the designated police officer in the district. So basically, he will forthwith give information to the concerned persons.
Subsection 2, the police officer shall inform the arrested person of his rights under subsection 1. इसीलिए as soon as he is brought to the police station, ये जिम्मेवारी है पुलिस वालों की कि उसको इमीडिएटली मोबाइल फोन दें और कहें कि तुम हमारे सामने इन्फॉर्म करो। और जहां तक हो सके गुड पुलिस ऑफिसर्स शुड रिकॉर्ड दैट। कल को वो कहे कि जी मुझे अलाउ नहीं किया, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए। Subsection 3, an entry of the fact that as to who has been informed of the arrest of such person shall be made in the Roznamcha, in a book kept in the police station in such form as state government may prescribe. Subsection 4, it shall be the duty of the magistrate before whom such arrested person is produced to satisfy himself that requirements of subsection 2 and 3 have been complied with in respect of such arrested person. Now this is your duty when you become judges tomorrow. आपने पूछना है कि क्या आपने इन्फॉर्म किया, क्या ये सारी चीजें सेफगार्ड्स पूरी हुई। So when he brings him before you within 24 hours, it is now your duty to confirm, because now this is a statutory right which actually is a right to life. So इसलिए कल को आप भी लपेटे में आ सकते हो कि आपने क्यों नहीं पूछा। कल को अगर कल को रिट डालता है और रिट में वो जीत गया, सुप्रीम कोर्ट चला गया, तो सबसे पहले मैजिस्ट्रेट के ऊपर आएगी ये बात। So always, whenever the person is produced before you in custody, it is your duty to ask him all these things. तुम्हें फोन दिया गया था, तुमने किसी को इन्फॉर्म किया, तुम उसने पहना हुआ था, तुम्हें ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट इन्फॉर्म किए गए थे, all those things. And when you write your order sheet, you must write these things. I asked the accused this, and these are his answers. So that tomorrow your जो आपकी जिमनी ऑर्डर होता है वो क्लियर होना चाहिए, उसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। कल को कहीं भी जाए, you are clear in your law. Now, we now go on to section 49, which corresponds to section 51 of CRPC. Search of accused of arrested person. Whenever a person is arrested by a police officer under a warrant which does not provide for taking of a bail, in other words, non-bailable warrant, or under a warrant which provides for the taking of bail but the person arrested cannot provide furnish bail, तो जहां पे नॉन बेलेबल ऑफेंस है और यहां जहां बेलेबल है और वो बेल नहीं दे पा रहा। सेकंड, a person is arrested without warrant or by a private person under a warrant and cannot legally be admitted to bail or is unable to furnish bail. और यहां जहां हम उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर रहे हैं, यहाँ प्राइवेट बंदा अरेस्ट कर रहा है, और ऐसे मामलों में नेचुरली हम बेल नहीं ले सकते। ऐसे मामलों में द ऑफिसर मेकिंग द अरेस्ट, जो बाद में कस्टडी लेता है, or when the arrest is made by a private person, the police officer to whom he makes over the person arrested may search पर। सो याद रखना, प्राइवेट बंदा खुद सर्च नहीं करेगा, ये पुलिस वाले ही करेंगे। may search such person and place in safe custody all articles other than necessary wearing apparel found upon him, and where any article is seized from the arrested person, a receipt showing the articles taken in possession by the police officer shall be given to such person. ये कोई भी फॉलो नहीं करता। सारे ये कहते हैं कि थाने में जो कुछ गया था, फोन भी गया, घड़ी भी गई, कोई गोल्ड की चीज हो तो वो भी गई, क्योंकि nobody follows this order, this law, कि हम जब भी किसी की सर्च करेंगे, जो जो चीज सिवाय उसके कपड़ों के हम सब कुछ उसका ले लेंगे और उसको हम प्रॉपर सील करके रखेंगे। या तो हम उसको कोर्ट में देंगे या उसके जो रिलेटिव्स आएंगे उनको पकड़ाएंगे और उनसे रिसीट लेंगे, और इन जो जो चीज हम आपकी ले रहे हैं उसकी रिसीट बना के इसको इमीडिएटली देंगे। मैंने आज तक तो देखी नहीं, और कभी मैं सडन चेक मार देता था एज एन आईजी भी, मैं कई बार चेक मारता था थानों में, 50-60 मोबाइल मिलते थे। ये किसके हैं? ओ सर वो देने हैं। मैं रिकॉर्ड दिखाओ, किसका लिया है, किसका सीज किया, कुछ रिकॉर्ड नहीं, फ्री फंड में। सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, यू मस्ट एंश्योर टुमारो एज अ मैजिस्ट्रेट, यू मस्ट आस्क द पर्सन जिसको जो आपके पास आया कि कस्टडी के लिए। प्रॉब्लम क्या होती है कि मैजिस्ट्रेट्स, आई टेल यू प्रैक्टिकली स्पीकिंग, मैजिस्ट्रेट्स पुलिस से छोटे मोटे फेवर लेते हैं।
जाना है मैंने, क्योंकि सैलरी क्या है, 1.5 की तो होती है, तो कहीं जाना है मैंने, तो थानेदार को, यार मेरी फैमिली जा रही है, सर हो जाएगा जनाब, एक हो जाएगा, आप भेज दो, वो जीप कर देगा। तो छोटी छोटी आपकी फेवर्स, या वो आएगा कभी, सर मैं गाँव गया था आपके लिए जनाब, एक घी लेके आया हूँ, अब घी में खुश हो गए। फैक्ट है ये, मैं जानता हूँ। इन छोटी चीजों की वजह से यू लुक द अदर वे। अब वो थानेदार आपको आएगा, आपको हर बार लगता है ये घी लाएगा अगली बार, और वो लाया 2 बंदे, सर मैंने अरेस्ट किया था, हाँ बता क्या करना है, सर रिमांड दे दो, हाँ हो गया था, चल ले, ओए क्या करता है तू, चल ले जाओ इसको। कोई ये सब यही है। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर नॉट डूइंग इट। अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो नाक में दम कर सकता है, पर मैंने कभी नहीं देखा, आज तक नहीं देखा इन माई लाइफ, बिकॉज नॉट अ सिंगल मैजिस्ट्रेट आई हैव सीन जो ऐसा करता हो। अब ये देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है। हम सब कहते हैं कि थाने में सब कुछ खा जाते हैं, कैसे खा सकते हैं ये, अगर आप लॉ फॉलो करा हो। आप जैसी आपने मुझे नहीं दी मेरी लिस्ट, मैं जैसे आप मुझे ले गए मैजिस्ट्रेट के सामने, मैंने सबसे पहले कहा सर मेरी चीजें खा गई, रिकॉर्ड पे ले आओ। वो कहेंगे तूने लिस्ट नहीं बनाई, अब आ गया रिकॉर्ड पे। अब उसने खाया भी होगा तो घर जाके वापस वो आपका पैक करके वापस देगा आपको। सो लॉ की कमी नहीं है इंडिया में, उसको इम्प्लीमेंट करने वालों की कमी है। चलिए आगे चलते हैं। Whenever it is necessary to cause a female to be searched, the search shall be made by another female with strict regard to decency. ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, with strict regard to decency. Merely because a woman is searching another woman can also be very lewd, can be very can be worse. I've seen this. वो इस तरह से उसको सर्च करती है, सारे आदमी बैठे होते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल नॉट सर्चिंग अ वुमन इन अ स्क्रीन, ओपन में कर रही है फिर। ये चीज, एक चीज याद रखना कि मियरली क्योंकि मैंने एक वुमन डिप्यूट कर दी सर्च करने के लिए काफी नहीं है। विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड्स टू डिसेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हैव यू पुट अप अ स्क्रीन? हैव यू आस्क्ड ऑल मेन टू लीव द रूम? इफ नो, देन स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी नहीं है। चलिए, वी नाउ गो ऑन टू सेक्शन 50 व्हिच कॉरेस्पॉन्ड्स टू सेक्शन 52। अगर कोई ऑफेंसिव वेपन्स मिलते हैं मेरे, उसको मैं इमीडिएटली सीज कर लूंगा। The police officer or other person making an arrest under the Sanhita may immediately after the arrest is made take from the person arrested any offensive weapons which he has about his person. तो जितने गुरसिख हैं उनका हम वो जो किरपान है वो ले सकते हैं, that's allowed, and shall deliver all weapons so taken to the court or officer before which or whom the officer or person making the arrest is required to produce, और ये हम कोर्ट में जमा कराएंगे। तो जितने भी हमें वेपन्स मिलते हैं, या कई बार क्या होता है लाइसेंस वेपन्स होते हैं, वो आप सारा लेके और कोर्ट में जमा कराओगे। सेक्शन 51 corresponds to section 53, examination of the accused. Now, when a person is arrested on a charge of committing an offense of such a nature and alleged to have been committed under such circumstances that there are reasonable grounds for believing that an examination of his person will afford evidence as to commission of an offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner acting at the request of any police officer and for any person acting in good faith in his aid and under his direction to make such an examination of the person arrested as is reasonably necessary in order to ascertain the facts which may afford such evidence, and to use force as is reasonably necessary for that purpose. कभी भी कोई ऑफेंस होता है जो बॉडी ऑफेंसेस हैं या और कोई है, जहां पे उसकी बॉडी से हमें एविडेंसेस मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल खरोचे या झट छीना झपटी में ही हैज गॉट लॉन्गर नेल्स, तो स्किन आ जाता है उसका, कुछ भी अगर हमें उसकी बॉडी से मिल सकता है, हम जबरदस्ती उसकी बॉडी का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। Now please remember this is a genus.
इसकी एक स्पीशी रेप का है, रेप का अलग है। सो मोटा मोटा कोई भी उसकी बॉडी से मुझे एविडेंस मिल सकता है। I can forcibly conduct his medical examination. I means I'm a registered medical practitioner, or at the behest of a police officer. So a police officer will request a registered medical practitioner कि ये इसके ऊपर है, मर्डर है, क्योंकि कल को सपोज प्राइवेट डिफेंस का मामला आता है तो ये चोटें ही बताएंगी कि ये प्राइवेट डिफेंस था कि नहीं, क्योंकि इस पे भी चोटें आई हैं। या दो गुटों में लड़ाई हो गई, अब दोनों में ऊपर क्या क्या चोटें हैं, ब्लंट हैं, शार्प हैं, बिकॉज हो सकता है आई विटनेसेस तो कल को झूठ बोलेंगे पर ये एविडेंस तो सच्चा रहने वाला है। सो इसीलिए जब भी बॉडी बिकम्स अ रिफ्यूज फॉर एविडेंसेस। सो जहां पे बॉडी के ऊपर से एविडेंसेस मिल सकते हैं किसी भी तरह के, वो हम लेंगे। दैट वी विल नाउ वी कैन आस्क देम फोर्सिबली, अ पुलिस ऑफिसर कैन आस्क एनीबडी इंक्लूडिंग अ प्राइवेट। जैसे गांव है तो हम गांव वाले को भी कह सकते हैं, बट रजिस्टर्ड होना चाहिए। Whenever the person of a female is to be examined under this section, the examination shall be made only and under the supervision of a female registered medical practitioner. However, अगर female accused है तो lady doctor ही उसका checkup करेगी, उसका ये उसका the entire examination will be conducted by a lady doctor. The registered medical practitioner shall without delay forward the examination report to the investigating officer. और वो जल्दी से इसका करके जल्दी जल्दी एग्जामिनेशन रिपोर्ट देगा। ऑलवेज रिमेंबर कि मेडिकल एग्जामिनेशन में जितना डिले होता है उतने चांसेस हैं कि वो एविडेंस हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। सो दैट इज द रीजन व्हाई द एग्जामिनेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द एक्यूज शुड बी एज क्विकली एज पॉसिबल। एग्जामिनेशन में क्या क्या होगा? एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड, ब्लड स्टेन्स, बॉडी पे ब्लड स्टेन्स है, सीमेन, swabs in cases of sexual offenses. You know, as far as swabs are concerned, vaginal swabs, they remain the live sperms alive, they remain alive for 48 hours, but dead remain for more than 15 days. तो ये जरूरी नहीं है कि पहले 24 घंटे हो गए या 48 घंटे हो गए। Dead can be found, the DNA can be found even after 15 days. There have been instances where they have been caught. So it is not only कि ये live की बात कर रहे हैं, latest science has taught us कि DNA can be recovered from dead semen samples also. Now, in cases of sexual offenses, sputum, thuk, sweat, hair samples, fingernail clippings by use of modern and scientific techniques, including DNA, profiling tests, and such other tests which we think necessary. Registered medical practitioner means a medical practitioner who possesses any medical qualification recognized under the National Medical Commission Act 2019 and whose name has been entered in the National Medical Register or a state medical register. This is the exact definition of a registered medical practitioner. अब हम आते हैं सेक्शन 52 जो सिर्फ रेप से डील करता है। 51 was a genus, 52 is a species. (53A) was also added by the 2005 Amendment Act. रेप में मेडिकल एग्जामिनेशन बिकम्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट ये है कि रेप में कंसेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। सो कंसेंट को निगेट या प्रूव करने के लिए बॉडी के ऊपर चोटों के निशान बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। सो दैट इज द रीजन व्हाई एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन। अब यहां याद रखना कौन पर्सन, एक्यूज की बात कर रहे हैं।
हम जबरदस्ती विक्टिम का एग्जामिनेशन नहीं कर सकते. आई कैन टेक अ प्रिजम्पशन अगेंस्ट हर इफ शी रिफ्यूजेस, बट याद रखना कि हम विक्टिम का उसकी मर्जी के बिना उसकी बॉडी को एग्जामिनेशन नहीं कर सकते. तो यहां हम बात करें सिर्फ अक्यूज की, बिकॉज विक्टिम का राइट टू प्रिवेसी इज अ फंडामेंटल राइट. With this background, let's read section 52. When a person is arrested on charge of committing an offense of rape or an attempt to commit rape, and there are reasonable grounds for believing that an examination of this person will afford evidence as to the commission of such offense, it shall be lawful for a registered medical practitioner employed in a hospital run by the government or a local authority, and in the absence of such a practitioner within the radius of 16 kilometers from where the place where the offense was committed, by any other registered medical practitioner. कायदे से हमें गवर्नमेंट मेडिकल प्रैक्टिशनर से कराना है. बाई चांस गांव है, राजस्थान के गांव बड़े दूर दूर होते हैं, ऐसे मामलों में हम तब अलाउ है अगर 16 किलोमीटर तक कोई हमारे पास गवर्नमेंट का नहीं है, तो फिर हम कोई लोकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से करा सकते हैं. Acting at the request of any police officer, and for such person acting in good faith in his aid and under his direction, to make such an examination of the arrested person and to use force as is reasonably necessary for that purpose. So accused को हम forcibly उसके body fluids भी ले सकते हैं, उसकी body का examination भी कर सकते हैं. The registered medical practitioner conducting such examination shall without delay examine such person and prepare a report of his examination giving the following particulars, namely: A. The name and address of the accused and of the person by whom he was brought. पहला point. दूसरा, age of the accused. तीसरा, marks of injury on the person of the accused. Actually छीना झपटी होगी तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बन जाती है. The description of the material taken from the person of the accused for DNA. Other material particulars in reasonable detail. The report shall state precisely the reasons for each conclusion. हर conclusion का expert opinion का reason देना पड़ेगा. किस टाइम पे commence हुआ medical examination और किस टाइम पे complete हुआ, shall also be noted in the report. The registered medical practitioner shall without any delay forward the report to the IO, who shall now forward it to the magistrate, referred to in 193. तो पुलिस को भेजेगा मेडिकल डॉक्टर, और अब आईओ जो है वो मैजिस्ट्रेट को भेजेगा. सेक्शन 53 corresponds to section 54. 53 का बैकग्राउंड ये है कि पहले जब एक्यूज को गिरफ्तार, ये अभी तक हम एक्यूज के खिलाफ मेडिकल कर रहे थे कि उसकी बॉडी पे कोई ना कोई टेल साइन मिलेगा हमें. अब जो सेक्शन आ रहा है वो एक्यूज के फेवर में लिखा हुआ है. ये वाला मेडिकल उसके फेवर वाला है. अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसके खिलाफ था कि उसकी बॉडी पे कोई ना कोई हमें एविडेंस मिलेगा. अब ये उसके फेवर का है. पुरानी सीआरपीसी में यानी 1898 के कोड में इट वाज नॉट मैंडेटरी टू कंडक्ट मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द अक्यूज ऑन अरेस्ट. कहीं मैंडेटरी नहीं था, मैजिस्ट्रेट की मर्जी होती थी. इट ऑल डिपेंडेड ऑन द मैजिस्ट्रेट. नाउ इन द न्यू लॉ इन सीआरपीसी इट हैज बीन मेड, ये पहले इवन 1973 की में नहीं था, बिकॉज मैंने भी नहीं करवाए थे बहुत साल. 2008 के अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था ये कि आपको अरेस्ट करते ही उसका मेडिकल कराना है. तो नेचुरली जब हम उसको अरेस्ट कर रहे हैं उसका मेडिकल हो रहा है. जब उसकी बेल हो गई वो दोबारा मेडिकल करा सकते हैं. अगर बाई चांस पहले मेडिकल में कोई चोटें नहीं है और जैसी उसकी बेल होती है, जैसे वो छूटता है उस पर चोटें हैं, वो केस दर्ज करा सकता है पुलिस के खिलाफ. प्लस हमें पता तो हो ना कि क्या क्या इसको जब अरेस्ट हुआ है तो क्या चोटें लगी हुई हैं.
So that is the reason why this, please remember, section 53 is written from accused point of view. जो अभी हमने पहले दो sections पढ़े, 51 and 52, they are written against the accused point of view. They are written from the victim point of view. Section 53. Where any person is arrested, he shall be examined. Shall. पहले नहीं था. He shall be examined by a medical officer in service of the central or state government, and in case a medical officer is not available, by a registered medical practitioner soon after the arrest is made. Soon after means as quickly as possible. Provided that if the medical officer or registered medical practitioner is of the opinion that one more examination of such person is necessary, he may do so. बाई चांस कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी ऊपर नहीं आई हैं, वो पेन कर रहा है, उसको पता है थोड़े दिनों बाद, एक दिन बाद ये बाहर शरीर पे दिखेगा. सो इन ऑल दोस केसेस ही कैन आस्क फॉर अ री एग्जामिनेशन. कई बार क्या होता है, रेस्ट करते वक्त या पहले जब हम लेके आए तब तक उसकी पिटाई पिटाई हो गई है. सो ही इज कंप्लेनिंग ऑफ पेन बट इट इज नॉट शोइंग टिल नाउ. इट शो नेचुरली, शो आफ्टर 1 day or 2 days. तो वो तब दोबारा उसका मेडिकल कर सकता है. Provided further that where the arrested person is a female, the examination of the body shall be made by, only by, and under supervision of a female medical officer. And in case the female medical officer is not available, by a female registered medical practitioner. So even a male doctor cannot examine a female accused. Subsection 2. The medical officer or registered medical practitioner so examining the arrested person shall prepare a record of such examination, mentioning therein any injuries or marks of violence upon the person arrested, and the approximate time when the injuries or marks have been inflicted. इस पे ये चोटें हैं और अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे, एक दिन, 2 दिन पुरानी है. ताकि अब अगर हम कल कोई कहता है कि मेरे को पुलिस पहले पकड़ के ले गई थी, और उसको अब ये करोबरेटिव बन सकती है ये चीजें. या तो पुलिस कहे कि जी अरेस्ट करते वक्त भाग रहा था, मैं फोर्स यूज किया, चोटें लग गई. पर अगर ऐसा हुआ है तो अरेस्ट तो आप अभी करके ला रहे हो, चोटें 2 दिन पुरानी है तो ये कैसे आ गई. तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इसलिए पुलिस वाले हमेशा डॉक्टरों को बड़े अच्छे गुड ह्यूमर में रखते हैं, ऑलवेज. ओके. Where such examination is made under subsection 1, a copy of the report of such examination shall be furnished by the medical officer or registered medical practitioner to the arrested person and the person nominated. तो अब ये वाली उसकी रिपोर्ट हम अरेस्टेड को, या अगर वो किसी और को नॉमिनेट करता है मेरे पेरेंट्स को, मेरे फ्रेंड को दे दो, उसको हम देंगे. सो इन अदर वर्ड्स, medical shall not only be conducted, a report shall be given to him forthwith. We now come on to section 54. It corresponds to section 54A. This section has to be read with TIP. Where a person is arrested on a charge of committing an offense and his identification by any other person is considered necessary for the purpose of investigation of such offense, the court having jurisdiction may, on the request of the officer in charge of a police station, not even the IO, officer in charge must make a request, direct the person so arrested be subject himself to identification by any person or persons in such manner as the court deems fit. So TIP के लिए ये section है. Provided that if the person identifying the person arrested is mentally or physically disabled, such process of identification shall take place under the supervision of a magistrate who shall take appropriate steps to ensure that such person identifies the person arrested using methods that person is comfortable with. The identification process shall be recorded by audio, video, electronic means. कई बार क्या होता है कि जैसे कोई रेप की विक्टिम है,
उसको कोई शी डिडंट नो कि किसने किया, पकड़े हमने। अब नेचुरली हम उसको सामना नहीं कराना चाहते, तो व्हाट वी डू इज नॉर्मली हम उसको उधर खड़ा करके उसके ऊपर लाइट डाल देते हैं, इसको अंधेरे में खड़ा कर देते हैं। तो देन वी नाउ आस्क द गर्ल कि नाउ यू रिकॉग्नाइज, दिस इज आल्सो अलाउड। सो बेसिकली टू एंश्योर कि ट्रॉमा ना हो विक्टिम को, सो जहां पे वो मेंटली या फिजिकली ट्रॉमा में है, तो हम वेज एंड मींस डिवाइस कर सकते हैं जहां पे उसकी आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करते हुए उससे हम आइडेंटिफिकेशन करा सकते हैं। अब ये पूरा का पूरा लॉ, जैसे कि मैंने बोला, ये टोटली टीआईपी के ऊपर है। जब तक ये वाला लॉ नहीं आया था, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द 2005 अमेंडमेंट एक्ट, जब तक ये लॉ नहीं आया था तब तक उस मना कर देते थे कि मैं नहीं कराता, आई विल नॉट एग्री। तो एक्सेप्ट कोर्ट could only take a presumption कि had he agreed he would have been identified। अब जबरदस्ती हम टीआईपी करा सकते हैं। सो ये फायदा हो गया इसका, अब प्रिजम्पशन लेने की जरूरत नहीं है। सो जब भी टीआईपी का क्वेश्चन आए, प्लीज डोंट फॉरगेट टू अपेंड दिस सेक्शन विद टीआईपी। आई थिंक आई मस्ट हैव रेफर्ड टू इट यस्टरडे। चलिए आगे चलते हैं। सेक्शन 55, अगर मैं किसी और किसी को, अब मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बड़ा अफसर हूं थाने का, तो क्या मैं नीचे कोई हेड कांस्टेबल को या कोई कांस्टेबल को भेज सकता हूं अरेस्ट करने के लिए? चलिए देखते हैं, अगला सेक्शन इस चीज को डील करता है। When any officer in charge of a police station or any police officer making an investigation requires any officer subordinate to him to arrest without a warrant, otherwise and in his presence, खुद नहीं जा रहा, इसको भेज रहा है कि तुम उसको गिरफ्तार करके ले आओ। Any person who may be lawfully be arrested without a warrant, he shall deliver to the officer required to make the arrest an order in writing। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट होता है हमारे लिए एज ए वकील, कि अगर मैं आईओ हूं या मैं एसएचओ हूं और मैं किसी को गिरफ्तार करना चाह रहा हूं और मैं किसी लोअर ऑफिसर को भेज रहा हूं जो ना आईओ है और ना मैं हूं और ना ही मेरे मेरे प्रेजेंस में गिरफ्तार करना है, तो रिटर्न ऑर्डर मुझे देना पड़ेगा कि मैं तुम्हें डेलीगेट कर रहा हूं ये पावर और तुम फलां फलां को गिरफ्तार करके लाओ। कोई नहीं करता। एंड एज ए डिफेंस काउंसिल मैं सबसे पहला क्वेश्चन ही ये पूछता था, क्या आप आईओ? नहीं। गिरफ्तार किसने किया? एक हेड कांस्टेबल ने। वो आईओ था? नहीं। आपने उसको ऑर्डर दिया था? तो पहली बात तो ये रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। तो ये ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट लॉज, पर फॉलो नहीं किए जाते कोई। पर हम एज ए वकील तो हम कर ही लेते, जो अच्छे तगड़े वकील हैं वो करते हैं। यस, यस, एनी ऑफिसर कैन डू सो। या बिकॉज ही इज अ सीनियर ऑफिसर, सीनियर ऑफिसर की पावर सारी है नीचे वालों की। ऐसे एक एसपी भी कर सकता है, डीजी भी कर सकता है। ओके, shall deliver to the officer required to make an arrest an order in writing specifying the person to be arrested and the offense or other cause for which the arrest is to be made, and the officer so required shall, before making the arrest, notify to the person to be arrested the substance of the order, and if required shall show him the order। Article 22 fundamental right। इसीलिए अगर मैं आईओ नहीं हूं और मैं एसएचओ नहीं हूं, मुझे रिटर्न आदेश देना पड़ेगा। और अगर मैं कहता हूं कि तुम कौन हो, तो वो बताएगा कि मेरे पास ये आदेश है, इस चीज के लिए मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। Nothing in this subsection 1 shall affect the power of a police officer to arrest a person under section 35। जो हम पढ़ चुके हैं, अरेस्ट विदाउट वारंट वो अलग चीज है। वो इसको हमें, वो कोई भी आदमी कांस्टेबल भी गिरफ्तार कर सकता है और उसके सामने कोई ऑफेंस हो रहा है या भगोड़ा है, वो उसके लिए मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं रिटर्न ऑर्डर लूं। We now go on to section 56, corresponds to section 55A, 2008 अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, अब it has become part of BNSS। It shall be the duty of the person having the custody of an accused to take reasonable care of the health and safety। अब एक लीगल ड्यूटी लगा दी गई है पुलिस वालों पे। अब अगर आपने प्रॉपर खाना ना दिया या उसकी केयर ना हुई और वो मेडिकली कुछ प्रॉब्लम आ गई,
You are liable now. बहुत बार होता है कि हेल्थ एंड सेफ्टी दो चीजें. You are not well. It's my duty now. Because please remember, if anything happens to you, it will be an illegal omission, and I'll be liable. Because हम जो BNS पढ़ चुके हैं मेरे से, act includes an illegal omission. So I am equally liable. Suppose आपको अस्थमा है और मैं आपको वो नहीं देता, आपका नेबुलाइजर नहीं देता, आई एम लाइबल अंडर दिस. और कहीं मर मुर गए तो कल्पेबल होमिसाइड हो जाएगा, बिकॉज दिस इज नाउ अ लीगल ड्यूटी. या आपने अपनी नस खुद काट ली तब भी मैं लाइबल हूं. आई शुड हैव टेकन केयर. इसीलिए सबसे पहले मैं जब भी थाने आता था तो मैं सबसे पहले उनके जो गंदा सा होता था वॉशरूम वहां जाता था. और वहां जाके ऊपर एक छोटी सी जगह होती, खिड़की बनी होती, उसमें बार्स लगे होते हैं हवालात के. मैं हाथ मार के देखता था ब्लेड तो नहीं पड़ा, क्योंकि ये पुलिस वाले शेव करते हैं जल्दी जल्दी और वहीं करते हैं, वहां रख देते हैं फटाफट. और वो जब भी कोई आता है जो अक्यूज होता है, उनको भी अकल होती है, वो वहां हाथ मारते हैं, ब्लेड मिल जाता है. एंड कई बार दे हैव कमिटेड सुसाइड. फंस जाते हैं. लोग तो मानते नहीं कि ये पक्का पुलिस वालों ने ही मारा होगा, वो खुद मरा होता है. सो इट इज माई ड्यूटी नाउ एज अ पुलिस ऑफिसर टू एंश्योर द हेल्थ. सो हेल्थ विल मीन, सपोज यू आर हैविंग एनी मेडिकल प्रॉब्लम, सपोज सेफ्टी, जहां आपको रख रहे हैं हवालात में बाकी लोग आपको पीट रहे हैं, गुंडों के साथ रख दिया, वो आपको पीट रहे हैं रात को, एनीथिंग. आप वेजिटेरियन हो, आपको हमने नॉनवेज का खाना दे दिया, वो नहीं खा रहा, वेल टुमारो. सो ये जो अनरिटन चीजें थी वो रिटर्न हो गई है, अब वो आदेश बन के आ गई है इस लेजिस्लेचर, और 2008 में आई है, मैंने आपको बताया. सो दैट मीन्स द हेल्थ एंड सेफ्टी इज माई लीगल ड्यूटी, क्योंकि अब आप मेरी कस्टडी में हो. हाँ जी. प्राइवेट पर्सन कस्टडी में नहीं रखता ना, हमारे पास आएगा. पर जब तक वो कस्टडी में, यस, जैसे वो ले जा रहा है, अब ध्यान रखना है. बिकॉज उसमें क्या होता है कि ये, इफ यू रिमेम्बर, अब मेरे पास थे BNS जो पढ़ा है, उस नहीं थे. अच्छा अच्छा, चलो वो मैं पढ़ाऊंगा आपको. उसमें मैकॉले ने एक बड़ा अच्छा पैरा दिया हुआ है. इफ एनीबडी टेक्स एनी कस्टडी, ही इज अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हिम. और अब अगर वो मर जाता है या कुछ हो जाता है, इट्स अ इलीगल ओमिशन, पनिशेबल एज एन एक्ट. तो इसलिए ये आपने एक बार उसको गिरफ्तार किया है, अब आपकी जिम्मेवारी. वो खांस रहा है, उसका नेबुलाइजर नहीं है, बहुत सारा स्मोक है रास्ते में, आपको चल चल कुछ नहीं होता तेरे को, बहुत देखे, मैं तुझे गिरफ्तार किया. वो मर मुर गया तो और मुसीबत आ जाएगी. सो वन थिंग वी मस्ट रिमेंबर, हेल्थ एंड सेफ्टी दोनों चीजों की जिम्मेवारी है जो भी अपनी कस्टडी में रख रहा है. सेक्शन 57 corresponds to section 56. अब जो आ रहे हैं दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शंस, 57 एंड 58, पुराने 56 and 57. A police officer making an arrest without warrant shall, without unnecessary delay, and subject to the provisions herein contained as to bail, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case, or before the officer in charge of a police station. कोई भी जब मैं अरेस्ट करता हूं, इमीडिएटली मेरा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 का शुरू हो जाता है. तो जहां मैंने उसको बिना वारंट गिरफ्तार किया है, एज सून एज पॉसिबल उसको मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है. और अगर मैं कोई सिपाही हूं या कोई छोटा ऑफिसर हूं, तो अपने ऑफिसर इंचार्ज के सामने पेश करना है. सो पहला पॉइंट ये है कि मोमेंट आई अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, I must immediately take him to my senior officer, who is not less than an officer in charge, or to the concerned magistrate of that इलाका, जिसको हम इलाका मैजिस्ट्रेट कहते हैं. हम उसके पास ले गए. अब अगला सेक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है. सेक्शन 58 corresponds to section 57.
ये मैं क्यों कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जब हम आएंगे इन्वेस्टिगेशन में, वापस जाएंगे, तो यही सेक्शन है डिटेंशन का। पहले समझ लेते हैं तब पढ़ेंगे। इन क्रिमिनल लॉ, even article 22 is written from criminal law point of view. It has no application to civil law. सिविल लॉ में कहीं भी नहीं लिखा हुआ विद इन 24 आवर्स, फोर्थ विद लिखा हुआ है वहां पे। क्रिमिनल लॉ में 24 आवर्स क्यों दिए गए हैं? कि 24 घंटे में जो पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर रहा है वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन कर लेगा। सो सपोज मैंने किसी को गिरफ्तार किया, अब मैं इन्वेस्टिगेट किया कि तू क्या करने जा रहा था। ओके, मैं बैंक लूट के भाग रहा था, या बैंक लूटने जा रहा था, कोई ऑफेंस करने जा रहा था या कर रहा है। अकॉर्डिंगली अगर उसने नहीं किया तो मैं उसको बाइंड डाउन के लिए ले जाऊंगा 107 में। अगर उसने कर दिया है तो मैं उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करूंगा। तो बेसिकली क्या क्या अंजाम हो सकते हैं? मैंने किसी एक बंदे को गिरफ्तार किया बिना वारंट। व्हाट ऑल पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल? ए, ही हैज ऑलरेडी कमिटेड द ऑफेंस। अब पता चला और मैं 24 घंटे में उससे पूछताछ कर रहा हूं और मुझे पता चल गया क्या ऑफेंस हुआ है, और अब मैं एफआईआर दर्ज कर रहा हूं। ए। बी, कोई ऑफेंस नहीं हुआ, करने जा रहा था, अब मैं उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में ले जाऊं, प्रिवेंटिव अरेस्ट में ले जाऊंगा, यानी 107 की कार्रवाई कर दूंगा। तभी उसको कहते हैं क्या पंजाब में कहते हैं, इक्विंजा, सत इक्विंजा की कार्रवाई इसलिए कहते हैं। ये हो गया दूसरा। अब जब मैं उसको लेके जाऊंगा मैजिस्ट्रेट के पास, मैजिस्ट्रेट के पास क्या विकल्प है? 3 विकल्प है। पहला, पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं जी हमने अभी इससे पूछताछ की है, 24 घंटे कम है, हमें इसे और पूछताछ करनी है। अब जो हम कहते हैं ना पुलिस रिमांड, गलत वर्ड है ऐसा, नॉट सीआरपीसी वर्ड, पुलिस डिटेंशन दूंगा उसको, जो 15 दिन की मैं दे सकता था पहले, अब बढ़ गया। तो अब मैं उसको 15 दिन तक पहले, अब आई विल कम टू दैट लेटर, तो वो उसको अब डिटेंशन फर्दर, जो हम कहते हैं पुलिस रिमांड, वो दूंगा कि ठीक है ले जा। वो पुलिस रिमांड आएगा आगे 167 सीआरपीसी में आता था। तो उसकी शुरुआत कहां से होती है? इस सेक्शन से। सो पहला विकल्प क्या है कि सर 24 घंटे में हमारी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई, इसने ऑफेंस किया है, हमने सारी चीजें रिकवर करनी है, साथ ही प्लीज डोंट यूज दिस वर्ड, आई एम यूजिंग पर्पसली अ रॉन्ग वर्ड समझने के लिए, क्योंकि कॉमन पार्लेंस में वर्ड यूज होता है। द करेक्ट वर्ड इज पुलिस डिटेंशन। तो मुझे पुलिस डिटेंशन दी जाए, ठीक है, 7 दिन के लिए ले लो। अब मैं उसको ले गया, ये पहला विकल्प है। सेकेंड ऑप्शन इज दैट मैं उसको 24 घंटे में, जब मैंने उससे कहा कि सर पूछताछ तो कर ली, छोटा ऑफेंस है, पर सर हो सकता है और कुछ हम और पूछताछ करेंगे, इसकी जरूरत नहीं है अभी, पर सर इसके बेल मत दो अभी, ठीक है, इसको हम जुडिशियल कस्टडी में भेज देते हैं, सो जुडिशियल डिटेंशन में भेज देते हैं। सो अब सेकंड ऑप्शन है कि मैं इसको जो हमारा स्टेट का जेल होता है वहां भेज देता हूं अंडर ट्रायल में, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। और तीसरा है कि मैं देखता हूं पुलिस वाले फालतू में गड़बड़ कर रहे हैं, इनोसेंट है, उससे उससे बॉन्ड भरवा के छोड़ देता हूं। सो याद रखना 3 ऑप्शंस होते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने। ए, एक्सटेंडेड पुलिस डिटेंशन, बी, नो पुलिस डिटेंशन बट जुडिशियल डिटेंशन, एंड सी, छोड़ देता है। क्लियर हो गया एवरीबॉडी? अब यहां से प्लीज रिमेंबर, हम जब इन्वेस्टिगेशन में वापस आएंगे अभी, अब ये क्वेश्चन ही उठता है कि मैं कितने दिन रख सकता हूं। अब नेचुरली पुलिस ने अगर इन्वेस्टिगेट करा है तो एफआईआर दर्ज की होगी, तभी तो 24 घंटे में अब ले लिया, एफआईआर दर्ज है उसके ऊपर। तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मैंने उसको जुडिशियल कस्टडी भेज दिया। अब ये थोड़ा ना कि वो
पुराने जमाने का डंजन में फेंक के चाबी सी में फेंक दी, उसके बारे में भूल गए, उसका वकील रोज मेरे चक्कर काट रहा है। सो अब पुलिस को वो इन्वेस्टिगेशन अगर वो 10 साल से कम पनिशेबल है तो 60 दिन में खत्म करनी है, और अगर 10 साल से ऊपर है तो 90 दिन में खत्म करनी है। अगर आपने ना की तो मुझे एज अ राइट बेल मिल जाएगी। ये जो जुडिशियल कस्टडी में आपने भेजा है, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा अगर 60 दिन या 90 दिन में इन्वेस्टिगेशन खत्म ना की। सो आप देखो शुरुआत कैसे हुई, जल्दी से एक बार लेट्स सी द फ्लो। मैंने आपको गिरफ्तार किया, मुझे लगा आपने ऑफेंस किया, आपसे पूछताछ की 24 घंटे में, यस आपने किया है, आप तो बहुत बड़े चोर निकले। मैंने चोरी का केस दर्ज कर लिया। चोरी का केस दर्ज करके मैं आपको थाने में सॉरी मैजिस्ट्रेट के पास इसी सेक्शन में ले गया 58 में, और मैजिस्ट्रेट ने मुझे 7 दिन का पुलिस डिटेंशन दे दिया। मैंने आपसे और पूछताछ की, और पूछताछ के बाद मैंने हो गई रिकवरी हो गई। मैंने कहा सर हो सकता है और मुझे पता चले, हम और तहकीकात कर रहे हैं, इसकी बेल मत लेना। मैजिस्ट्रेट ने उसको भेज दिया जुडिशियल कस्टडी में। अब वो इन्वेस्टिगेशन मुझे अगर 10 साल से कम पनिशेबल है तो 60 दिन में कंप्लीट करनी है। तो वो जुडिशियल कस्टडी कितने दिन रहेगा? 60 दिन। अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट ना हुई, और अगर नॉन बेलेबल केस है, बेलेबल है तब तो मेरी आपने बेल लेनी लेनी है। और अगर अब सपोज मेरी इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गई, मैंने 60 दिन से पहले पहले फाइनल रिपोर्ट दे दी, चार्जशीट डाल दी, और नॉन बेलेबल केस है, अब नहीं मिली आपको बेल। अब डिपेंड करेगा बेल कब मिले, हो सकता है 10 साल ना मिले। सो अब मर्डर का केस है, 90 दिन में मैंने चार्जशीट डाल दी, बैठे रहो। 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, केस चल रहा है, आप अंदर। सो इसीलिए प्लीज रिमेंबर, ये एक वाटर शेड सेक्शन है ये, कि अगर मैंने जैसे बोला फ्लो चार्ट बनाए, अगर हम, मैंने एक ऑफेंस किया, मुझे पुलिस ने गिरफ्तार किया, मुझे 24 घंटे के बाद पूछताछ करने के बाद मुझे इस 58 में पेश किया मैजिस्ट्रेट के सामने। 3 ऑप्शंस हैं, पुलिस डिटेंशन, जुडिशियल डिटेंशन, या मुझे छोड़ सकता है। अगर जुडिशियल डिटेंशन में रख दिया तो मेरी बेल एज अ राइट कब हो सकती है? अगर ये वाली इन्वेस्टिगेशन 60 दिन या 90 दिन एज अ केस में भी खत्म ना हुई तो। एवरीबॉडी नाउ क्लियर? सो इसीलिए ये सेक्शन इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि ये बेस बनता है हमारा अगला इन्वेस्टिगेशन का, डिटेंशन का। इस बैकग्राउंड को रखते हुए देखते हैं व्हाट डज दिस सेक्शन से। नो पुलिस ऑफिसर शैल डिटेन इन कस्टडी अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट for a longer period than under all the circumstances of the case is reasonable. पहला part, we will not keep anybody in custody if for an unreasonable period, and such period shall not, in the absence of a special order of magistrate under 187 corresponding to 167 of CRPC, exceed 24 hours. कायदे से 24 घंटे के अंदर अंदर हम इस मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करेंगे, यानी कि 24 घंटे का टाइम दिया गया है मुझे इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अब अगर मैजिस्ट्रेट चाहे और मैं अगर रिक्वेस्ट करूं तो मुझे एक्सटेंडेड दी जा सकती है, जो 187 यानी कि 167 सीआरपीसी में दी जाती है, और वो 15 दिन है। अब वो चेंज हो गया काफी, वो हम आएंगे, काफी क्रिटिसिज्म है इसका। तो अब शुरुआत हुई पुलिस ऑफिसर के गिरफ्तारी से, 24 घंटे के इन्वेस्टिगेशन से कम पड़ गए, मैजिस्ट्रेट के सामने इस सेक्शन में पेश किया, पुलिस कस्टडी ले सकते हैं, जुडिशियल कस्टडी में जा सकता है, या छोड़ सकते हैं। आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर। विल टेक इट अप फ्रॉम हियर इन माय नेक्स्ट लेक्चर। I hope everybody is clear now. Okay.
हम यहीं से विल टेक इट अप फ्रॉम। इन बेसिक्स को समझ लेना, क्योंकि एक बार ये बेसिक्स समझ आती है तब सीआरपीसी इजी हो जाती है। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, विल मीट यू टुमारो।